میرا نام احسان ہے اور میں کراچی کے ایک درمیانے سے علاقے میں رہتا ہوں۔ ہمارے گھر میں میری خالہ روبینہ اور ان کی بیٹی ماہم رہتی تھیں۔ امی کا انتقال مجھے بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور ابو اپنی نوکری کی وجہ سے سعودی عرب میں مقیم تھے۔ سال میں بس ایک آدھ بار ہی پاکستان آ پاتے تھے، اسی لیے گھر کی تمام ذمہ داریاں خالہ روبینہ ہی سنبھالتی تھیں اور میں بھی انہیں اپنی ماں کا درجہ دیتا تھا۔ ماہم ایک نجی اسکول میں ٹیچر تھی اور میں ایک بینک میں ملازمت کرتا تھا۔ ماہم کی عمر 24 سال تھی اور وہ نہ صرف پڑھائی میں سنجیدہ تھی بلکہ گھر کے ہر کام میں بھی خالہ کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ یہ وہ دن تھے جب کورونا کی وبا کی وجہ سے پورا ملک لاک ڈاؤن کی زد میں تھا، اسکول بند تھے، دفاتر کے اوقات محدود ہو چکے تھے۔ میں بھی بینک سے جلد واپس آ جاتا تھا اور زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کے سامنے گزارتا تھا۔ زندگی جیسے رکسی گئی تھی، دوستوں سے ملنا جلنا ختم ہو چکا تھا۔ اسی دوران ایک صبح میں نیچے آیا تو خالہ کے بھائی یعنی میرے ماموں بیٹھے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ نانی کی طبیعت خراب ہے اور خالہ کو چند دن کے لیے ساتھ لے جانا ہے۔ خالہ نے جلدی ناشتہ بنایا اور جاتے ہوئے مجھے تاکید کی کہ ماہم کا خیال رکھنا اور گھر سے باہر غیر ضروری نہ نکلنا۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ماہم نے گھر کے کام سنبھال لیے کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ماسی کو بھی رخصت کر دیا گیا تھا۔ وہ اکثر گھر میں سادہ لباس میں ہی رہتی تھی۔ اس دن بھی وہ ٹی وی دیکھتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگی کہ دوپہر کے کھانے میں کیا بناؤں۔ میں نے بے دھیانی میں کہا جو دل چاہے۔ وہ مسکرا کر صفائی میں لگ گئی۔ نہ جانے کیوں اس دن پہلی بار میں نے اسے مختلف نظر سے دیکھا، حالانکہ وہی ماہم تھی جسے میں برسوں سے جانتا تھا۔ میں نے خود کو جھڑکا اور اوپر اپنے کمرے میں جا کر فلم لگا لی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر آہٹ ہوئی تو دیکھا ماہم ہاتھ میں جھاڑو لیے کھڑی تھی۔ اس نے بتایا کہ کمرے کی صفائی کرنی ہے۔ میں نے گھبراہٹ میں راستہ دیا اور نیچے آ گیا۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی، مگر جب وہ نیچے آئی تو بالکل نارمل تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے رویے نے مجھے مزید الجھا دیا۔ اس نے مجھ سے پانی مانگا۔ میں نے گلاس پکڑایا تو اس کی نظریں لمحہ بھر کو میری آنکھوں سے ٹکرائیں اور فوراً ہٹ گئیں۔ دوپہر کے کھانے کی تیاری کے دوران وہ فریزر سے گوشت نکالنے میں مجھ سے مدد مانگنے لگی۔ میں قریب گیا تو ایک لمحے کے لیے فاصلہ بہت کم رہ گیا، مگر اس نے خود ہی بات کو معمولی بنا دیا۔ نہانے جاتے ہوئے اس نے ہلکے انداز میں کہا کہ میں اوپر نہ آؤں۔ میں ٹی وی دیکھنے لگا مگر ذہن کہیں اور تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بدلے ہوئے لباس میں سامنے آئی تو میں لمحہ بھر کو ساکت رہ گیا۔ اس نے مسکرا کر پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے بس اتنا کہا کہ لباس اچھا لگ رہا ہے۔ وہ خوش ہو گئی۔ ہم دونوں کچن میں ساتھ کھانا بنانے لگے۔ ہنسی مذاق میں وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ اسی دوران خالہ کی کال آئی جسے اس نے سنبھال لیا اور سب کچھ معمول کے مطابق بتایا۔ فون بند کرنے کے بعد وہ سنجیدہ ہو گئی اور دھیمی آواز میں بولی کہ میں اسے اچھا لگنے لگا ہوں مگر یہ بات کسی تک نہ پہنچے۔ میں نے بے اختیار ہاں کر دی۔ اس دن شام کا کھانا باہر سے منگوایا گیا۔ تھکن کے بعد وہ جلدی سو گئی اور میں بھی اپنے کمرے میں آ کر دیر تک چھت کو دیکھتا رہا۔ دل اور دماغ کے بیچ ایک خاموش جنگ شروع ہو چکی تھی جس کا انجام مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا۔ اس رات میں دیر تک جاگتا رہا اور بار بار اپنے آپ سے سوال کرتا رہا کہ جو احساس دل میں سر اٹھا رہا ہے کیا وہ درست ہے یا محض تنہائی کا اثر۔ لاک ڈاؤن نے ویسے ہی سب کو الجھا رکھا تھا اور گھر کی خاموشی انسان کے اندر کے شور کو اور تیز کر دیتی ہے۔ صبح آنکھ کھلی تو گھڑی 10 بجا رہی تھی۔ نیچے آیا تو کچن سے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ماہم ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی سادگی تھی مگر آنکھوں میں ایک الگ سی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے ناشتہ میز پر رکھا۔ میں بھی بغیر کچھ کہے بیٹھ گیا۔ ہم دونوں کے درمیان لفظ کم اور احساس زیادہ تھے۔ اسی دوران خالہ روبینہ کی کال آئی۔ ماہم نے فون اٹھایا تو خالہ کی آواز میں ناراضی صاف جھلک رہی تھی کہ رات فون کیوں نہیں اٹھایا۔ ماہم نے کوئی بہانہ بنا دیا۔ فون بند ہوا تو اس نے گہری سانس لی۔ میں نے موضوع بدلنے کے لیے کہا کہ آج کیا ارادہ ہے۔ اس نے بتایا کہ گھر کی صفائی کرنی ہے۔ میں بینک جانے کی تیاری کرنے لگا مگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے آج بھی جلدی چھٹی تھی۔ دفتر پہنچا تو دل کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار موبائل دیکھتا رہا۔
दोपहर तक काम खत्म करके वापस घर आया तो दरवाज़ा माहम ने खोला। उसकी आंखों में जैसे कोई सवाल था जो वो पूछ नहीं पा रही थी। खाला अभी तक नहीं आई थी और घर मैं फिर वही खामोश फदा थी। मैंने पानी पिया और सोफे पर बैठ गया। माहम मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। कुछ लम्हे हम दोनों खामोश रहे। फिर उसने आहिस्ता से कहा कि कल की बात ने उसे भी बेचैन कर दिया है। मैंने पहली बार खुलकर कहा कि शायद ये सब हालात का असर है और हमें खुद पर काबू रखना चाहिए। वो खामोशी से सुनती रही मगर उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने कहा कि वो मुझे हमेशा एक जिम्मेदार इंसान समझती थी और अब डर लग रहा है कि कहीं सब कुछ गलत ना हो जाए। उसकी बात सुनकर मुझे भी अपनी हदें याद आ गईं। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा। इसी दौरान शाम हो गई। खाला का दोबारा फोन आया कि वो अगली सुबह वापस आ जाएंगी। ये सुनकर माहिम के चेहरे पर अजीब सा सुकून आ गया। शायद उसे भी किसी बड़े की मौजूदगी की ज़रूरत महसूस हो रही थी। रात को हमने सादा सा खाना बनाया और अलग अलग कमरों में चले गए मगर नींद दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। रात के किसी पहर मुझे लगा जैसे दरवाजे के बाहर आहट हुई हो। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और खुद को समझाया कि ये मेरा वहम है। सुबह सवेरे दरवाजे की घंटी बजी तो पता चला खाला रोबीना आ चुकी हैं। उनके चेहरे पर थकन थी मगर आंखों में एक गहरी नज़र जैसे वो सब कुछ पढ़ रही हूँ। उन्होंने अंदर आते ही घर का जायजा लिया, हमें गौर से देखा और बस इतना कहा कि नाश्ता बना दो। नाश्ता के दौरान खाला कम बोले मगर उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। माहम भी नजरें झुकाए रही। मैं दफ्तर जाने के बहाने घर से निकल गया मगर दिल वहीं उठका रहा। दोपहर को माहम का पैगाम आया कि खाला कुछ अजीब सी बातें कर रही हैं। मैंने जवाब दिया कि फिक्र न करे। शाम को घर आया तो खाला ने मुझे अलग से कमरे में बुलाया। इनकी आवाज़ नरम थी मगर लफ्ज़ वजनदार। उन्होंने कहा कि मैं बचपन से तुम्हें देख रही हूँ और समझती हूँ कि तुम एक अच्छे लड़के हो मगर कुछ चीज़ें वक्त पर न रोकी जाएं तो बड़े मसाइल बन जाती हैं। मैं खामोशी से सुनता रहा। उन्होंने माहम का जिक्र किए बगैर मुझे जिम्मेदारी और रिश्तों की हदूद समझाएं। इस लम्हे मुझे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि मैं किस मोड़ पर खड़ा हुआ हूँ। मैंने सिर झुकाकर कहा कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो माफ़ कर दें। खाला ने गहरी सांस ली और कहा कि वो चाहती हैं कि घर का सुकून कायम रहे। इस रात में बहुत देर तक सोचता रहा। अब ये वाज़ेह हो चुका था कि जो रास्ता आसान लग रहा था वो दरस्त नहीं था। दिल मानने को तैयार नहीं था मगर दिमाग फैसला कर चुका था। एक ऐसा फैसला जो आने वाले दिनों में सब कुछ बदल देने वाला था। खाला रोबीना की इस गुफ्तगू के बाद जैसे मेरे अंदर कोई चीज़ टूट सी गई थी। मैंने खुद को काम में झोंकने की कोशिश की मगर बेनक की फाइलों के दरमियान भी जहन बार बार घर की तरफ भाग जाता। शाम को जब मैं लौटा तो घर का माहौल बदला बदला सा था। खाला किचन में थी और माहम लांज में खामोश बैठी मोबाइल देख रही थी। न वो पहले जैसी हंसी थी और न ही बातों की वो रवानी। मैंने सलाम किया तो दोनों ने जवाब दिया मगर निगाहें नहीं मिली। रात का खाना खामोशी से खाया गया। खाला ने चंद रस्मी बातें की मगर असल बात सबके दिलों में दबी रही। खाने के बाद खाला ने माहम को अपने कमरे में बुला लिया। दरवाज़ा बंद हुआ तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि वही बात होने वाली है जिस से मैं बचना चाह रहा था। मैं अपने कमरे में टहलता रहा। दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ देर बाद माहम बाहर निकली तो उसकी आंखें सरख थीं। वो बगैर कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। इस मंजर ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मेरी खामोशी भी एक जुर्म बन चुकी है। अगली सुबह में जल्दी उठा और खाला से बात करने का फैसला किया। वो सहन में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। मैं उनके सामने बैठ गया और हिम्मत करके कहा कि मैं सब समझ चुका हूँ। खाला ने सर उठाकर मुझे देखा। उनकी नज़र में गुस्सा कम और फिक्र ज़्यादा थी। उन्होंने कहा कि माहम उनकी अकलौती बेटी है और वो नहीं चाहते कि उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दाग आए जो उम्र भर उसका पीछा करे। मैंने लरजती आवाज़ में कहा कि मेरी नीयत कभी ख़राब नहीं थी मगर मैं मानता हूँ कि मैं हद से करीब चला गया था। खाला ने लंबी सांस ली और कहा कि नीयत और अमल के दरमियान फासला रखना
ही असल आजमाइश होती है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो वो सख्त फैसला करने पर मजबूर हो जाएंगी। उस लम्हे मुझे अपने वालिद, अपनी मरहूम माँ और इस घर की इज्जत सब एक साथ याद आ गए। मैंने खाला के हाथ थामकर वादा किया कि मैं आइंदा खुद को हर हद में रखूंगा और माहम से मुनासिब फासला अख्तियार करूंगा। इसी दिन मैंने माहम से भी बात करने का इरादा किया। शाम को वो छत पर पौधों को पानी दे रही थी। मैंने फासले से ही उसका नाम लिया। वो चौंकी मगर रखी। मैंने कहा कि हमें बात करनी चाहिए। उसने धीमी आवाज में कहा कि सब कुछ खाला जान चुकी हैं। मैंने सर हिलाकर कहा कि हाँ, और यही बेहतर है। मैंने उससे कहा कि जो कुछ हमारे दरमियान हवा वो गलत था और हमें उसे वहीं रोक देना चाहिए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा कि वो भी यही चाहती है, मगर दिल को समझाना आसान नहीं। मैंने पहली बार मजबूत लहजे में कहा कि अगर हमने दिल को अभी न रोका तो बाद में सब कुछ टूट जाएगा। उसने खामोशी से इस बात में सर हिला दिया। इस दिन के बाद घर में एक नया नज़्म ज़ब्त आ गया। हम दोनों एक दूसरे से कम बात करते, मुश्तरका जगहों पर भी एक हद कायम रखते। खाला की आंखों में रफ्ता रफ्ता सुकून लौटने लगा। लॉकडाउन के दिन भी गुजरने लगे। दफ्तर के औकात मामूल पर आने लगे और मैं देर तक काम में रहने लगा ताकि घर में गैर ज़रूरी आमने सामने न हो। माहम भी स्कूल के ऑनलाइन लेक्चर्स में मसरूफ़ हो गई। एक शाम खाला ने मुझे बुलाया और कहा कि वो चाहती हैं मैं अपनी ज़िंदगी के अगले मरहले के बारे में सोचूं। इनका कहना था कि वक्त आ गया है कि मैं शादी के बारे में संजीदगी से फैसला करूं। मैंने पहली बार इस बात की मुखालफत नहीं की, बल्कि दिल ही दिल में उसे एक रास्ता समझा। माहम ने भी ये बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक उदास मगर मुतमईन सी मुस्कुराहट आई। शायद वो भी चाहती थी कि ये कहानी यहीं ख़त्म हो। दिन महीनों में बदलने लगे। हमारे दरमियान अब खामोश एहतराम था, वही एहतराम जो रिश्तों को बचा लेता है। मैंने सीख लिया था कि हर एहसास का पीछा करना बहादुरी नहीं, बल्कि कभी कभी रख जाना ही असल ताकत होती है। और यही एहसास मुझे आहिस्ता आहिस्ता एक नए इंजाम की तरफ ले जा रहा था। वक्त गुजरता गया और मैंने महसूस किया कि खाला रोबीना की खामोश निगरानी ने हमारे घर के माहौल को एक नया तवाज़ुन दे दिया है। वो अब कम बोलती थी, मगर उनकी मौजूदगी हर बात को दुरुस्त सिमत में रखने के लिए काफ़ी थी। मैं काम से लौटता तो घर में एक संजीदा मगर पुरस्कून फ़ज़ा होती। माहम अपने काम में मसरूफ़ रहती। नज़रें कम मिलते, मगर दिलों में एक गैर कही हुई समझ बोझ जन्म ले चुकी थी। एक दिन खाला ने मुझे सहन में बुलाकर बैठाया और बड़े इत्मीनान से कहा कि उन्होंने मेरे लिए एक मुनासिब रिश्ता देखना शुरू कर दिया है। उनके लहजे में हुक्म नहीं बल्कि एतमाद था। मैंने सिर झुकाकर हाँ कही तो मुझे यूं लगा जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। इसी रात महिम ने पहली बार खुद मुझसे बात की। उसने कहा कि वो चाहती है सब कुछ इज्जत और वक़ार के साथ आगे बढ़े। उसकी आवाज़ में उदासी ज़रूर थी, मगर शकवा नहीं। मैंने उससे वादा किया कि जो फैसला होगा वो सब के लिए बेहतर होगा। कुछ ही दिनों बाद खाला ने बताया कि एक नेक समझदार खानदान से बात आगे बढ़ रही है। मैंने दिल में अजीब सी घबराहट के साथ सुकून भी महसूस किया। माहम ने भी अपनी ज़िंदगी के बारे में संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया। उसने एक करीबी रिश्ता दार के यहाँ रिश्ता तय होने की खबर खाला को दी तो खाला की आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। मुझे इस लम्हे एहसास हवा कि शायद यही वो रास्ता था जिससे सबकी इज्जत बच सकती थी। मेरी शादी सादगी से अंजाम पाई। खाला ने माँ बनकर हर रस्म अदा की और माहम ने बहन की तरह मेरा साथ दिया। इस दिन मैंने उसे पहली बार हकीकी मानो में बहन समझकर दुआ दी। वक्त के साथ साथ मेरे और माहम के दरमियान वो फासला मजबूत रिश्ते मैं बदल गया जो एतमाद और एहतराम पर कायम था। कुछ माह बाद माहम की शादी भी हो गई। रुखसती के वक्त खाला रुबीना की आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू दुख के नहीं बल्कि सुकून के थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रख कर कहा कि गलतियों से सीख लेना ही असल कामयाबी होती है। मैंने इस दिन दिल में अपनी मरहूम माँ को याद किया और शुक्र अदा किया कि मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे वक्त पर संभाल लिया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो एहसास होता है कि अगर इस वक्त हमने खुद पर काबू न पाया होता तो शायद सब कुछ
बिखर जाता। जिंदगी ने मुझे ये सबक दिया कि हर जज्बा सच नहीं होता और हर सच को जीना भी जरूरी नहीं। कुछ चीजें कुर्बानी मांगती हैं ताकि बड़े रिश्ते महफूज रह सकें। हमारे घर में एक बार फिर वही सुकून लौट आया है जो पहले कभी था। खाला रोबीना अब मुतमईन है। महम अपनी नई जिंदगी में खुश है और मैं भी अपनी जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। ये कहानी किसी एक दिन की नहीं बल्कि उन फैसलों की है जो इंसान को बड़ा बनाते हैं। मैंने सीखा कि खुद पर काबू पाना कमजोरी नहीं बल्कि किरदार की मजबूती की निशानी है, और यही मजबूती इंसान को आखिरकार इस मकाम तक ले आती है जहां दिल मुतमईन और सिर फख्र से बुलंद हो जाता है। यूं ये बाब बंद हुआ, मगर उसने मुझे जिंदगी भर का सबक दे दिया कि रिश्तों की हरमत सबसे बड़ी इमानत होती है।